I will be making the pedigree analysis chart and you will be giving me the answers, right? Raise up your hands to give me the answers. Whatsoever you feel like. Maybe it is wrong or it is correct. That is up to me. You keep it on me. ये सही है कि गलत है. Let me decide. But you at least try. Okay? आप एक बार try ज़रूर करेंगे इसको कि what is this pedigree analysis. Analysis में हमने एक चीज़ आपको जो करवाई वहाँ पे उस दिन, that is to identify the trait. While identifying those who could not attend this class of pedigree analysis, beta, this is a pictorial representation with some symbols, and this pictorial representation is of 3 generations. Okay, 1 to 3 generations, and the third generation is known to be as the most recent one. मतलब जो current one है, जो currently exist कर रही है, वो वाली generation को हम बोलते हैं most recent generation को third generation, और उससे ऊपर वाली सेकेंड एंड फर्स्ट जनरेशन, दैट इज ऑफ पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. ठीक है, तो जब भी आपने pedigree एनालिसिस करना है, यू आर ऑलवेज टू सी द टू थिंग्स टू आइडेंटिफाई अ ट्रेट. एक तो मैं रफ में अभी आपको बता रही हूँ कि ट्रेट जो है, एक आपको ये नॉर्मल सर्कल्स होते हैं फीमेल्स के लिए, अगर नॉर्मल है तो वो ऐसे हॉलो नजर आएगा, और अगर वो इन्फेक्टेड है यानी उसके अंदर कैरिंग अ ट्रेट है तो वो पूरा प्रॉपर शेडेड नजर आएगा. ठीक है, शेडिंग कैन बी डन विद द लाइंस और फुल कलर्ड. Okay, similarly the male is there. This male is represented by a square. If it is normal, then like this, that is hollow, it is not having any shades in between. And if it is infected, then it will be having the color in between, fully colored or with lines. Okay, so this is the concept firstly. बाकी आप साथ साथ में समझेंगे जिन लोगों ने क्लास नहीं अटेंड किया था. तो अभी मैं एक आपके लिए pedigree analysis बना रही हूँ. Whenever you are to identify the trait, ये याद रखो, क्वेश्चन आपको सिर्फ एक चीज का आएगा. अगर लिखा है आइडेंटिफाई द ट्रेट, दैट्स इट. व्हाट टाइप ऑफ द ट्रेट you are going to say. You are not going to write the disease name. You are not going to write the name of that particular character for which this pedigree is made. Rather, you can't find out that for what character, for what disease, for what character this particular pedigree is being made, or what character is it representing. ये आपको दिखता भी नहीं है, पता भी नहीं चल सकता. तो आइडेंटिफाई द ट्रेट में हमने करना क्या होता है, दो चीजें बतानी है. एक बताना है कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव, इन दोनों में से एक चीज बतानी है. दूसरा आपने बताना है कि वो ऑटोजोमल है या एलोजोमल. ठीक है, ऑटोजोमल है या एलोजोमल, ये बताना है. सो आइडेंटिफाई ट्रेट में ये अंडरस्टूड है कि इन दोनों में से आपको एक एक टर्म प्रोवाइड करनी है. ठीक है, तो अभी हमने फिलहाल ये किया था, जीनोटाइप्स का कंसेप्ट मैंने अभी बताना है आपको. तो पहले हम इसी के ऊपर थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ इसको वर्कआउट करते हैं. सो आई विल बी मेकिंग वन ऑफ द pedigree analysis for you people, and then you have to answer me or identify the trait which is provided by it. Okay, along with this you can also make this pedigree chart on your sheets, on your notebooks as well. Okay, so साथ के साथ ये बनाते रहो. This is a square which is hollow, line in between that represents mating of the two parents, that is the father parent and the mother parent. So this is that the two offsprings they have been mated with, so represents the two offsprings or the two parents of the same generation. Offspring means, sorry, parents of the same generation. Okay, parents, mother parent and father parent. Okay, further there is a possibility of next generation. जब next generation शो करनी है तो हमने लाइन से शो करनी है. Like this we have to represent further, and this is represented as in the form of a flow chart. Representation pictorial plus flow chart की तरह होती है. So they have 3 of the sons, that is represented by the squares. First is normal, second showing the trait, so this I am shading out. Third is a normal female, fourth is a female which is infected. Okay, 5 children they have, and the fifth is a normal male. Okay, this third girl, that was a normal girl, is mated with another of the male, resulting in the formation of 3 of the offsprings. Male is again infected, female not infected. The 2 of the females not infected. Yes,
Now here, as I told you, the third generation is the most recent one. So you have to start from here and go up. Okay? You have to start it from here and go up. Okay? This is the first generation. This is the second generation. This is the third generation. Okay? So now you tell me the trait. Firstly, identify the trait. हाँ जी, who will identify the traits? सबसे पहले बताइए मुझे whether it is a dominant or a recessive trait. जिन लोगों ने क्लास नहीं अटेंड किया था, आई गेस आप लोग को भी थोड़ा आइडिया हो गया होगा. नाउ यू कैन गेस आउट whether it is a dominant or a recessive trait. Those who have attended, yes. Anyone who wants to ask? Anyone who wants to answer this? It is recessive. How recessive, Tushar? हाँ हाँ, अभी बच्चे आपने जब आंसर देना है, बिकॉज द ट्रेड इज विजिबल इन द थर्ड जनरेशन. I told you to start from the third and go to the first. Okay, the trait is visible in the third generation, but the parents of this offspring, they are not having the trait. Neither the grandparents of this offspring, इसी offspring के grandparents ये वाले हुए, उनके पास भी ये trait नहीं है. तो जब दो generations में ये absent है, एक में present है, तो this is a kind of what trait? It is a recessive trait. Very nice. Recessive तब लिया जाता है, बच्चे जिन्होंने पहले नहीं सुना था सुन लो. Recessive तब लिया जाएगा when it is absent in one or more generations. ठीक है, आपको यूजुअली ये रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी 3 जनरेशंस में. 2 की भी आ सकती है, पर इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं. ठीक है, तो जब ये आपने देखना है 3 जनरेशंस कॉन्टिन्यूड में देखनी है. ऐसे नहीं देखना कि यहाँ ट्रेट में है और उसके अंकल और आंट में भी है. अंकल आंट हो गए ना, क्योंकि ये पेरेंट्स है, ये अंकल और आंट हो गए इस ऑफस्प्रिंग के लिए, तो उनमें नहीं हमने देखना. ठीक है, वी आर टू जस्ट लुक फॉर दिस जनरेशन, उसी के पेरेंट्स, उसी के आगे पेरेंट्स. ठीक है, हमने एक ट्री को सिर्फ उसी को व्यू करना है जहां पे हमने देखना है, बस वहां. ठीक है, सो वेरी नाइस. दिस इज रिसेसिव बिकॉज इट इज एब्सेंट इन 2 generations, found in 1, so it is recessive. Now what is the other trait, that is it is autosomal or allosomal? हाँ जी, anybody else other than Tushar? Anyone want to answer this? No. Shivam? Shivam, can you please give the answer whether it is autosomal or allosomal? This is autosomal. Why it is autosomal? Why it is termed as an autosomal trait? आपको मैंने बताया था कि दो चीजें पॉसिबल हैं, या ये ऑटोसोमल होगा या एलोसोमल होगा. कैसे पता चलता है ऑटोसोमल क्या है और एलोसोमल क्या है? बच्चे आपने हमेशा पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, क्रोमोसोम्स दो तरह के होते हैं. The ones which provide us the general features that is common to both male and female, they are autosomes, है ना. The one chromosomes that which provide only the female character to females and only the male character to male, that is the XX and XY chromosomes जो होते हैं, ये वाले X and Y chromosomes, इनको हम क्या कहते हैं? एलोसोम्स. इन्हीं दोनों की वजह से बनते हैं ये ट्रेट्स. ठीक है, अब अगर तो जो फीचर है इट इज नॉट रिलेटेड विद मेलनेस एंड फीमेलनेस, कहीं पे भी कुछ स्पेशल फीचर नहीं आ रहा. मेलनेस फीमेलनेस का मैंने आपको यहाँ पे बताया था, क्रिस क्रॉस पैटर्न होता है. क्रिस क्रॉस क्या होता है कि मेल फीमेल मेल या फीमेल मेल फीमेल, इन दोनों में से कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा हो, तब हम उसको कहते हैं एलोसोमल. यानी अगर सबसे पहले मेल, यहाँ मेल इन्फेक्टेड होना चाहिए, नेक्स्ट में उसका फीमेल इन्फेक्टेड होना चाहिए, फिर उसके बाद मेल है, मेल फीमेल मेल, तब हम कहेंगे ये एलोसोमल है. या फीमेल मेल फीमेल, तो ये एलोसोमल आएगा. ठीक है, पर अब यहाँ पे एक और चीज से आप इसको देख सकते हो कि सेम ही जनरेशन में अगर मेल और फीमेल दोनों इन्फेक्टेड हैं, फिर तो ये नहीं ना फॉलो हो सकता. सेम जनरेशन में मेल फीमेल कभी नहीं आ सकते. ये देखो, मेल फीमेल नहीं ना आ सकता कभी भी एक ही जनरेशन में. तो एक ही जनरेशन में दोनों मेल और फीमेल इन्फेक्टेड हो जाए तो वो एलोसोमल बनेगा ही नहीं, ऑब्वियसली वो रह जाएगा ऑटोसोमल.
तो ये भी एक तरीका है, आप देख सकते हो कि एक ही जनरेशन में मेल फीमेल जो है वो इन्फेक्टेड है, तो इट इज ऑटोसोमल। यहाँ आप क्रिस क्रॉस पैटर्न को फॉलो कर लें इसको वेरीफाई करने के लिए वेदर इट इज एलोसोमल और नॉट। ओके, so what is this trait now? This trait is autosomal, not allosomal. So what is this trait? It is autosomal recessive. ये हो गया हमारा ट्रेट का फीचर, ऑटोसोमल रिसेसिव। हाँ जी, ये क्लियर हो गया, ठीक है। Anybody who is not having a clear idea of this, how to say auto or allosomal or dominant or recessive? This is done, fine. Now there was a third question as well जो हमने सैटरडे को डिस्कस नहीं किया था. I'm going to describe this now. Before that, if anybody is having any question, किसी को नहीं समझ आया तो बच्चे please ask this that you are not clear on. Coming to the third type of the question which is usually asked from here, that is to design the genotypes of the parents. पहली चीज देखो, पेरेंट्स का पूछा जाएगा, 1 2 3 जनरेशन किसी का भी पूछा जा सकता है। जीनोटाइप्स का क्वेश्चन जब आता है ना, तो आपको इन ऑर्गेनिजम्स को नंबरिंग करके दिया जाएगा या आपने खुद करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इस ऑर्गेनिज्म को 5th दिया जा सकता है या उसी के अपने ही सिर्फ फ्लो चार्ट में नंबर दिया जा सकता है। सो समटाइम्स दे प्रोवाइडेड एंड समटाइम्स यू हैव टू प्रोवाइड। ओके, मैक्सिमम दे प्रोवाइडेड, नहीं भी प्रोवाइड करेंगे तो वो सीधा ही बोलेंगे इन द मेल चाइल्ड ऑफ द 3rd जनरेशन, ऐसा, ठीक है। तो वो मतलब क्लियर हो जाता है, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ नंबरिंग की है हमने, ये 10 ऑर्गेनिजम्स ऑफ 1 कॉमन पेरेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपसे पूछते हैं प्रोवाइड द जीनोटाइप ऑफ लेट्स से 8th ऑर्गेनिज्म, 3rd जनरेशन में 8th ऑर्गेनिज्म, 5th ऑर्गेनिज्म एंड 1st ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इस फ्लो चार्ट में 3 ऑर्गेनिजम्स के जीनोटाइप्स बताएं, तीनों के जीनोटाइप्स बताएं। अब जीनोटाइप्स में मेल फीमेल का कंसेप्ट आपने तब रखना है जब ये एलोसोमल, तब नहीं रखना जब ये ऑटोसोमल, पहली चीज, ठीक है। मतलब आपने इसको एक्स और वाई के साथ कंसर्न नहीं करना। एलोसोमल नहीं है ना हमारा ये ट्रेट, दिस इज ऑटोसोमल। तो ऑटोसोमल में हमने जनरल फीचर्स, अभी मैंने यहाँ पे लिखा था दैट ऑटोसोम्स आर दोज व्हिच ग्रो फॉर जनरल करेक्टर्स दैट व्हिच आर सेम टू मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो जनरल करेक्टर्स आप किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स वाई नहीं, उनके अलावा किसी भी अल्फाबेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है। अब मेरे पास ए के लिए, ए अल्फाबेट के लिए 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, ये बने मेंडल के अकॉर्डिंग, है ना। तो जब हमारे पास 2 पेयर्स मतलब फैक्टर्स जो आते हैं वो पेयर में आते हैं, तो वी हैव ईदर होमोजाइगस डोमिनेंट, ईदर होमोजाइगस रिसेसिव और हेटेरोजाइगस कंडीशन, क्लियर। यहाँ पे जब आपने जीनोटाइप्स देने हैं, पहली चीज आपने देखी ऑटोसोमल, तो आपने अल्फाबेट रखा ए, एक्स वाई छोड़ के कोई भी अल्फाबेट आ सकता है। दूसरा आपने देखा रिसेसिव, आप इस ट्रेट को रिसेसिव बोल रहे हो, तो ऑब्वियसली उसके लिए सिर्फ एक ही पॉसिबल जीनोटाइप है, स्मॉल ए स्मॉल। ट्रेट अगर मेरा डोमिनेटिंग होता तो आपने इसको डोमिनेटिंग दोनों से बनाना था, पर फिर उसके बाद वो जो पेरेंट्स वगैरह के साथ वो अपने आप फिक्स हो जाता कि क्या आएगा, ठीक है। वो भी मैं आपको एक करवाती हूँ, ऑटोसोमल डोमिनेंट का भी करवाते हैं। पहले आप इसका देखिए, यहाँ पे जीनोटाइप क्या आएगा, स्मॉल ए फॉर 8th ऑर्गेनिज्म, ये इसका आ गया हमारे पास स्मॉल ए आ गया। 8th डन, 8th का तो फिक्स है, आंसर लिख दिया हमने, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन ही तब आना है जब ये होमोजाइगस रिसेसिव। अब 5th का भी पूछा उसने, तो होमोजाइगस रिसेसिव, अब आप बिना सोचे समझे ये नहीं करोगे कि जितने ट्रेट वाले हैं उनको सबको स्मॉल ए लिख दो, जितने बिना ट्रेट के वो सारे कैपिटल है या स्मॉल ए अपनी मर्जी से। नो, this is because they are getting small a from either parent. So these 2 parents of the 8th offspring, these 2 parents are what? Heterozygous. तो ये क्या आएंगे, ये heterozygous parents हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं की दोनों स्मॉल एज जाके जुड़ी तो ये पॉसिबल बना। और जो 2 ऑफस्प्रिंग्स नहीं ट्रेड शो कर रहे, वो कैपिटल ए कैपिटल भी हो सकते हैं और कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबल है, दोनों ही नहीं ट्रेड दे रहे। और हमारा आंसर भी सही है, क्योंकि रिसेसिव था तभी ट्रेड आता है, और दोनों इन फीचर्स में मतलब होमोजाइगस हेटेरोजाइगस में ट्रेड नहीं आएगा। तो जब दोनों पॉसिबल हैं तो हम कैपिटल ए डैश कर देते हैं, ठीक है। एंड द डैश रिप्रेजेंट्स ईदर ए और ए, लाइक दिस, कैपिटल ए और स्मॉल ए, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डैश, ओके। फिर तो 9th और 10th हमारे दोनों ये बनेंगे, क्लियर। कोई भी आ सकते हैं, समझ आ गया, राइट। अब
फिफ्थ का बन गया, तो फिफ्थ का हमने फिक्स कर दिया क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और पॉसिबिलिटी है नहीं। कैपिटल ए आ नहीं सकता। अगर यहाँ कैपिटल ए होता या यहाँ पे कैपिटल ए होता तो सारे कैपिटल ए स्मॉल ए आ जाते, है ना, फिर ये ट्रेट ही ना आता, तो वो गलत है। तो हमारा ये फिक्स हो गया कि दोनों पेरेंट्स कैपिटल ए स्मॉल ए। समझ गए यहाँ तक? अब इस पेरेंट को देखो और उसके दोनों पेरेंट्स को देखो बस। तो ये क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए, फिफ्थ ऑर्गेनिज्म। ईदर ऑफ दीज इज हैविंग स्मॉल ए, ईदर ऑफ दीज इज हैविंग कैपिटल ए, मतलब दोनों में से आप किसी को भी दे सकते हो। पर दूसरी चीज क्या है, आपको इन दोनों में ट्रेट नहीं देना, यानी आप स्मॉल ए का पेयर नहीं बना सकते। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप स्मॉल ए, अब यहाँ पे लेट से ये मैं यहाँ पे सेकंड नंबर पे इसको मैंने कैपिटल ए दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने कैपिटल ए दे दिया। क्या ये सही है, फर्स्ट एंड सेकंड? क्योंकि ये दोनों ही ट्रेट नहीं दे रहे, तो मैं इनको जैसे मर्जी बना लूँ। नो, दिस इज अगेन रॉन्ग। क्यों? आपने ये बनाने के बाद आंसर वेरीफाई करना है अपना सही है कि नहीं। अगर ये पेरेंट्स के दोनों के जीनोटाइप्स होते तो हमारे पास स्मॉल ए का कॉम्बिनेशन कहाँ से आता, जब एक पेरेंट में है ही नहीं। तो यानी ये पेरेंट भी हमारा हेट्रोजाइगस है। समझ गए? तो ये हेट्रोजाइगस पेरेंट्स हैं दोनों, which are not showing the trait because they are dominating feature, not showing the trait. This was a trait which is recessive. तो रिसेसिव होने की वजह से स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए ये सारे पेयर शो कर रहे हैं। बाकी जितने आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं दे आर इधर कैपिटल ए स्मॉल ए, ये वाला पेयर भी हो सकता है, या ये कैपिटल ए स्मॉल ए। समझ आ गया? तो हमारा आंसर क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म के लिए भी क्या आया, दिस इज कैपिटल ए स्मॉल। डन? क्लियर? एनीबडी हैविंग एनी डाउट? जिनको नहीं समझ आया जीनोटाइप कैसे देना है? Further, another example of this with only 2 generations. Okay, now let's say with 2 generations can you figure out the answer of its identify the trait or not? Okay, हमारा next example क्या है, that is we have a male and a female with next generation that is having offsprings 5 in number. They are 5 in number. Male is infected, another male is not infected, the female is infected, and the male is not. So from this, can you figure out that what is the trait, whether it is dominant or recessive, or it is dominant or recessive, autosomal or allosomal? हाँ जी, वरुण, what is this trait, dominant or recessive? जल्दी बताओ बेटा, पीरियड खत्म हो जाएगा। Recessive. Why recessive? Because it is seen in one generation but it was not found in the other. क्योंकि अब दो ही हैं तो मैंने बोला वन और मोर में अगर एब्सेंट है तो वो रिसेसिव है। ठीक है, वन में तो एटलीस्ट एब्सेंट है ना, आउट ऑफ टू वन में एब्सेंट है। थर्ड आपने एज्यूम नहीं करना अपनी तरफ से, कुछ भी चीज आपने अपने से एज्यूम नहीं करनी, जो गिवन है सिर्फ वही देखना है। सो दिस इज अ रिसेसिव ट्रेट। नाइस। व्हाट इज दिस, ऑटोसोमल और एलोसोमल? Autosomal, because the male and female of same category, sorry, same generation, they are found in the same generation as infected, so this is autosomal. Allosomal होता अगर थर्ड जनरेशन होती तो पता चलता कुछ, वो है ही नहीं है, ऑटोसोमल है। ठीक है, और अगर हमें जीनोटाइप देना हो इस ऑर्गेनिज्म को और इस ऑर्गेनिज्म को तो बताएं what can be the genotype of the both and also to the male this mother का भी बताओ, तीनों का बताओ जीनोटाइप। हाँ, जिसमें ट्रेट है क्योंकि वो रिसेसिव ट्रेट है तो ये स्मॉल ए हो गया। और इसमें बताओ बाय 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 ए डैश, बिकॉज दिस स्मॉल ए स्मॉल, हाँ
will be going to come from both the parents. तो obvious है, not showing the trait, they are heterozygous. And in either combination this is possible. ठीक है, this can combine in homozygous condition or a heterozygous resulting into a uninfected male. ठीक है, right? Clear? So this is about the trait that when we are the autosomal recessive or allosomal recessive. Recessive में ऐसा है. और जब अपने dominating के लिए अपने जीनोटाइप्स फाइंड करने हैं, अभी मैं आपको पहले बता देती हूँ, दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट जो अब हम बताने लगेंगे. लेकिन अब यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट में आपने जीनोटाइप्स मुझे बताने हैं, सो इसके लिए आप जल्दी जल्दी से मेरे को बताएंगे. दिस इज 2 males and 2 females. One female, male and a female. This female is infected and this male is infected. The female is again partnered with another male, resulting in the 3 offsprings. This is the 3 offsprings, and this normal male is again infected, mated, forming the 3 organisms, 2 females and 1 male, all normal. हाँ जी, ये क्या है? This is what type of autosomal dominant. Why dominant? Because you can see it all generations में है, 1 2 3, ठीक है, और यहाँ था उसके भी पेरेंट्स में है, सो बाकी हमने नहीं देखना. So this is autosomal dominant. Why autosomal? Again male female of the same generation infected. Okay. अब genotypes बताएं मुझे for this organism, that is third generation, this organism and this organism. Both the parents. Give it for both the parents. वो तो obviously आ ही जाना है. This one offspring and this one grandchild. जल्दी. The period is over. Why? Shivam, we are saying it is a dominating trait, not recessive. हाँ, तो अब ये कैपिटल तो आएगा, पर कैपिटल कैसा? डोमिनेटिंग होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट? क्योंकि हमने कह ही दिया डिजीज हो या ट्रेट है जो हमारा वो डोमिनेंट है, तो फिर आपने इसको डोमिनेंट लेके चलना है. और ऑटो बोला था इसलिए ए अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर. ठीक है, जब आपको डिजीजेस करवाऊंगी तो उनके क्रॉसेस हम करेंगे, पर्टिकुलरली एलोसोमल वालों के. ठीक है, ये नहीं समझना कि मैम ने एलोसोमल नहीं दिया, वो यूजली थोड़ा कम ही मिलता है हमें, डिजीज के कंसर्न में मिलेगा. जैसे हीमोफीलिया का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो जब हम हीमोफीलिया डिजीज पढ़ेंगे तो उनके क्रॉसेस बनाएंगे, तब आपको उनके जीनोटाइप्स कैसे फाइंड करने हैं वो भी पता चलेगा. फिलहाल ऑटोसोमल का सीखो, बताओ जल्दी से. Okay, now I will tell you. This is, if I say the trait is dominant, it can be possible by either of these. Okay, if I say it is capital A small a, अगर मैं ये लेके चलती हूँ कि ये capital A small a है, तो capital A small a का मतलब क्या है कि यहाँ से small a आना चाहिए, एक पेरेंट से small a आएगा, दूसरे पेरेंट से capital A आएगा. तो मैंने इनको दोनों को ले लिया, एक पेरेंट में small a लिया, दूसरे में capital A लिया. उसके बाद अब दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ए ले लेती हूँ और यहाँ पे भी कैपिटल ए ले लेते हैं, तो इसको भी ट्रेट को डोमिनेंट होना चाहिए था, नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पेयर बना दिया स्मॉल ए स्मॉल. अगर ये दोनों पेरेंट्स हैं, अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए पेरेंट्स हैं, तो इनमें कॉम्बिनेशन बनता है सबका कैपिटल ए स्मॉल, जो कि गलत है. ठीक है, सबका कैपिटल ए स्मॉल ए नहीं है. अब मैंने यहाँ पे इसको स्मॉल ए कर दिया. अब अगर ये स्मॉल ए में बनाती हूँ तो पॉसिबिलिटी क्या आती है? कैपिटल ए स्मॉल ए जो ये बना, स्मॉल ए जो ये वाले बना. ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ ना. तो यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने इसको डिलीट कर दिया. क्यों? क्योंकि मेरे पास पॉसिबिलिटी ही ये बन रही थी, कैपिटल ए स्मॉल ए, राइट. अगर मैं यहाँ पे डोमिनेटिंग जीन का इंक्लूजन कर देती, डोमिनेटिंग जीन में एक डाल देती, तो ऑब्वियसली ये भी ट्रेट शो कर रहा होता, पर ये ट्रेट नहीं शो कर रहा है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको स्मॉल ए ही लेंगे. इधर प्योर डोमिनेंट नहीं ले पाए क्योंकि वो सारे कॉम्बिनेशन पेयर्स कैपिटल ए स्मॉल ए बन जाने थे, इनमें नहीं चाहिए. ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे पास, दिस इज ऑफस्प्रिंग विद कैपिटल ए स्मॉल ए एंड द पेरेंट्स हैविंग दीस.
अब इस पेरेंट से आप इधर जाओगे, इनको तो हम बाद में देखते हैं, पहले इसी ऑफस्प्रिंग से आप इनके पेरेंट्स में जाओगे। तो कैपिटल ए कहाँ आएगा, जहां पे ट्रेड शो कर रहा है, और स्मॉल ए कहाँ आएगा, जहां ट्रेड नहीं शो कर रहा, वहां ही पॉसिबली डाल सकते हैं ना हम। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए में, कैपिटल मैंने इधर भेज दिया, स्मॉल ए इधर भेज दिया। अब अगेन मेरे पास क्या है, मैं इसको कैपिटल ए और इसको कैपिटल ए प्रोवाइड कर सकती हूँ। अगर मैं ऐसा करती हूँ कैपिटल ए दोनों तरफ प्रोवाइड कर दिया गैप में, तो क्या होगा, सारे कॉम्बिनेशन कैपिटल ए स्मॉल ए या कैपिटल ए के आएंगे, स्मॉल ए फिर नहीं बन रहा। ये तो चलो आउटर रीजन से है, लेकिन इनमें भी तो हमें प्लेन वाले चाहिए ना बिना ट्रेड के, तो उसमें भी हमें हेट्रोजाइगस इसको लेना पड़ा। दिस वाज हेट्रोजाइगस एंड दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, अब ये होमोजाइगस रिसेसिव ये वाला पेरेंट बन गया। ठीक है, और ये हमारा बन गया कैपिटल ए स्मॉल। ठीक है, अब क्या ये जस्टिफाई कर रहा है इन सबको, ऑब्वियसली कर रहा है। ये वाला क्या आ गया, स्मॉल ए आ गया, है ना, ये इसी का ही है, हाँ ये इसी का ऑफस्प्रिंग है। इसका पूछेंगे तो आप कुछ भी इसके साथ मैचिंग लगा सकते हो, मतलब जो पेरेंट्स के साथ आएगा। ठीक है, क्योंकि ये आउटर रीजन का है, सिमिलरली ये भी आउटर रीजन का है, और रीजन इसका सेपरेट है, डिफरेंट पेरेंट्स। ठीक है, तो इनके लिए आप कुछ भी दोनों में से पॉसिबल लगा सकते हो, कैपिटल ए नहीं, ये भी तो अनइंफेक्टेड है, स्मॉल ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये पॉसिबल हो पा रहा है, यस इट इज कैपिटल ए स्मॉल पॉसिबल। सो दीज आर द जीनोटाइप्स। ओके, अगर आपसे पूछते हैं कि इनमें जस्टिफाई करो कि ये स्मॉल ए है कि नहीं है, तो इसका स्मॉल ए करने से ये सारे स्मॉल एज आ रहे हैं, यस, और इसमें कोई इन्फेक्शन भी नहीं आ रहा, कोई इन्फेक्टेड नहीं है। पर अगर अगर यहाँ पे किसी में इन्फेक्शन आता है, ये मैं आपको एग्जाम्पल में बता रही हूँ, अगर सपोजिंग यहाँ पे ये इन्फेक्टेड होता है उसमें, फिर आप क्या करते हैं, ये इन्फेक्टेड कैसे आ गया, ये तो दोनों ही आपको अनइन्फेक्टेड नजर आ रहे हैं। फीमेल कैन ऑल्सो बी अ करियर, वो करियर भी हो सकती थी। ठीक है, स्मॉल ए इसका कॉम्बिनेशन तो देना ही था, पर उसमें ये इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट भी हो सकता था, इसलिए हम इसको ले भी सकते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, करियर की तरह। जरूरी नहीं है करियर्स जो हैं वो आपको कलर्ड मिलेंगी बीच में। ठीक है, जरूरी नहीं है करियर जो हैं वो कलर्ड मिलेंगे, करियर जो हैं वो पूरी तरह से हॉलो भी दे सकते हैं, और कईयों में बहुत रेयर होता है कि आपको वो कलर्ड ऐसे हाफ कलर्ड शेडेड बना के बताएं कि फीमेल करियर है। ठीक है, बहुत रेयर होगा किसी भी क्रॉस में आपको वो करियर शो करेंगे, नहीं तो यूजुअली करियर फीमेल शो नहीं करते, दे वॉट प्रोवाइड यू दैट इज ऑल अ हॉलो स्ट्रक्चर लाइक दिस। If it could have been here, you will be always making the female as a career, not a male. You will be considering the female as a career. वहां आप बताएंगे कि considering this as a career, the female as a career, so this trait is possible in this. Otherwise, it could have not been possible. ठीक है, करियर वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया, right? बच्चे try these kind of the questions, try figuring out the dominating and recessive traits, autosomal allosomal traits, or the different of the pre analysis, as you can get it from the reference books. As many books you can follow for the question practice, because again I'm saying this is a part of both theory as well as your practical. Okay, तो जितने आपको फ्लो चार्ट्स ऐसे मिले डिग्री एनालिसिस के, अगर आपको उसमें उन्होंने जीनोटाइप नहीं भी दिया, यू प्रैक्टिस इट आउट। ठीक है, क्वेश्चन में उन्होंने नहीं भी पूछा या जो भी चार्ट दिया उसमें सिर्फ उन्होंने ये बताया आपको, आप अपने आप से इसकी प्रैक्टिस करिए और खुद से ढूंढिए कि क्या हो सकता है इसका जीनोटाइप अगर मुझे बनाना। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उससे। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ऑटोसोमल के लिए ए अल्फाबेट लेना है, एलोसोमल के लिए एक्स और वाई लेंगे, वो हम आपको बाद में करेंगे। ठीक है, हाँ जी, क्लियर। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, योर टाइम इज ओवर, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग।